data types in Java. देखिए data may be of different types. The reason we needs various types of operation for it may be possible we needs number of whole number type. It may be possible we needs a number of real number types which always contain point values, and some of them may be in the form of binary digits, like image always exists in the form of binary number 0 and 1, and some value which may be consisted by true or false. So data can be categorized into different types as per our requirements. So the classification of data we need there to organize them for our requirements. So write down the definition of data types in Java. The data may be described into various types and in different range. As per our requirement in application. As per our requirement in application. In application. So the Java programming language, Java programming language also consisted by a rich set of data type. They are classified into following types. Also constant के बाद they are also constant by के बाद sir. They are also classified था. They are also classified into sir programming language also constant by. Constant नहीं है, classified by. The Java programming language also classified the data type in following types. First one, primitive data type, and the second one, non-primitive data type. These are two classifications of data type in Java. आप देखे होंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी किए होंगे, वहां भी आपको दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन मिला होगा. एक जिसको हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप्स कहा करते थे वहां पर, और दूसरा जिसको सेकेंडरी डेटा टाइप्स कहते थे. यहाँ पर उस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई कर दिया गया और यहाँ पर उसका न्यू नेम दिया गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड द अनदर इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. Primitive data type. These are those data types. These are those data types. Primitive data types. These are those data types which represent
which represent the data of common types. Data of common types to apply in any application. To apply in any application of Java. They are defined as follows. They are defined as follows. First one, पहला INT small int होगा. This data type is primary data types able to store by default signed 4-byte signed 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 4-byte size of integer value. Its value range between -2147 48 36 48 to plus 214 7 48 36 4 7. Just one minus. This one is the range of in data type in Java. को याद होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इसका रेंज था was very smaller and -32,768 to plus 32,768 हुआ करता था. और ये जो रेंज आप यहाँ देख रहे हैं ये लॉन्ग डेटा टाइप का रेंज हुआ करता था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. उसको यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया, इसके रेंज को एक्सपेंड कर दिया गया और ये बाय डिफॉल्ट साइंड वैल्यू लेता है, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के वैल्यू को ये डेटा टाइप स्टोर करने की एबिलिटी रखता है. ध्यान से लिखिएगा रेंज दोनों का. सेकेंड है लॉन्ग. दिस डेटा टाइप able to store larger range of data of signed type by taking 8-byte size memory, by taking 8-byte size of memory.
this data type can store value range lies between -9,223 372 036 854 775 807। देखिए कितना बड़ा रेंज है। ये निगेटिव माइनस में रखता है, ये वैल्यू माइनस में, ये नीचे आना चाहिए था। और ये जाएगा कहां तक? तो 2। अब इतना रेंज की डेटा को हम तो नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा। इसको कॉपी किए और इधर आके प्लस कर दिए, पेस्ट कर दिए, और ये 7 से 6 हो जाएगा, एक कम। दिस इज द रेंज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इसकी कितनी इलैबोरेटेड रेंज है कि किसी भी रेंज के किसी भी टाइप्स के साइंड और अनसाइंड दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एबल टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ लार्जर रेंज, मिलियन ट्रिलियंस डेटा को स्टोर कर सकता है। इतनी हायर इसकी कैपेसिटी यहाँ पर बना दिया गया। ध्यान से डिजिट्स लिखेंगे आप लोग। सर एग्जाम में पूछता है क्या रेंज सर? एग्जाम में हिंट तक तो कभी कभी पूछ देता है, लॉन्ग वगैरह का नहीं पूछता है। लॉन्ग वगैरह का बहुत बड़ा रेंज है, तो इसको याद करना मुश्किल। आप इंट तक याद रख सकते हैं, इंट के बाद वाला थोड़ा मुश्किल है। वैसे एक दो डिजिट हेरी फेरी भी होगा तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। बड़ा रेंज में सबको थोड़ा याद रहता है, इंट तक सबको याद रहता है। डायरेक्ट एक्सप्लेन डाटा टाइप से पूछता है। हाँ पूछेगा तो एक्सप्लेन डेटा टाइप पूछेगा। हाँ अब उसमें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों को आपको लिखना पड़ता है, उसमें सबको चारों पांच पूरा लिखना पड़ता है। सही बात। लिख लिए, रेंज बड़ा रेंज है, सावधानी से लिखिएगा। लिख लिए सर। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, अगला है फ्लोट। दिस डेटा टाइप एबल टू स्टोर four byte size of real number, 4 byte size of real number, formatted value with format 0.0 f, 0.0 f। यहीं से f इसका फॉर्मेट में स्पेसिफाई हो जाता है, और जब भी हम लोग को वैल्यू असाइन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो f फॉर्मेट का यूज करते हैं। ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट फॉर्मेट। लिख लीजिए, here f is 0.0 f is also known as, here 0.0 f is also known as default format. The data variable of this type can store maximum 6 decimal point value. The data variable. The data variable of this type
able to store maximum 6 decimal point value as format, और स्क्रीन पर फॉर्मेट है, देख लीजिए, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, सिलेक्टेड है, 0.6000 है, फिर एफ है। मैक्सिमम ये इसका है कि ये 6 डेसिमल पॉइंट डिजिट तक का वैल्यू को कैन टेक, ले सकता है। नेक्स्ट है डबल। This data type extends the range of float data type and take 8 byte size of memory, 8 byte size of memory, 8 byte size of memory by using a default format 0.0 small d. Here, the format small d. Here, format small d is generally used for currency. अब देखिए इसकी मैक्सिमम रेंज की अगर बात करते हैं तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15D तक इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये मैक्सिमम आपको 15 डेसिमल पॉइंट वैल्यूज तक स्टोर कर सकता है, इसकी अपनी रेंज है। Next one, CAR. This data type is used to store a single character. Used to store a single character by taking 2 byte size of memory, by taking 2 byte size of memory. C आप पढ़े होंगे तो वहां 1 बाइट लेता है, C प्लस भी 1 बाइट लेता है, बट जावा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम करता है और ये कहता है कि भाई हमको 2 बाइट कम से कम चाहिए, उससे कम में हमारा काम नहीं चलेगा। अब देखिए कि कोई भी वेरिएबल अगर हमारा इस टाइप का वेरिएबल है, अगर हम लोग लेते हैं char और z इक्वल टू और सिंगल कोटेशन मार्क्स में अगर a लिख देते हैं तो ये 1 बाइट में तो ये कैरेक्टर स्टोर कर लेता है और अगले वाले में ये नल स्टोर करता है, और इसीलिए इसको कम से कम 2 बाइट साइज की जरूरत होती है। इसका अपना ओन स्ट्रक्चर है। तो एग्जांपल और ये फिगर बना लीजिएगा। 1 बाइट में वैल्यू रखा और नेक्स्ट में ये 1 बाइट रिजर्व रखता है जिसमें ये नल स्टोर करता है। जावा का जो नल है वो ऑल स्मॉल में होता है, NULL।
Next one, short. This data type of Java is similar to int data type of C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई एक एब्सेंट हो गया क्लास से, वीडियो को ऑन कीजिए तो। लगता है सतीश चला गया क्या? लिंक उसका आ जा रहा था। क्या लिखे थे लास्ट लाइन? Repeat again the last line. Yes, sir. Type of C programming language. Language, full stop. This data type takes 2 byte size of memory and data range -32,768 to 32,767. This is the range of short data type. यानी कि C में जो हम लोग डेटा टाइप यूज करते थे बिल्कुल सिमिलर काम करता है। 2 byte size of memory and data range, उसके बाद सर डेटा रेंज यहाँ लिख दिए स्क्रीन पर -32,768 टू +32,767। इसका डेटा रेंज होता है, इसी के बीच के डेटा को ये ऑलवेज स्टोर करता है। नेक्स्ट वन है बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप, this data type is used to store a data by using 1 byte size of memory. By using default value 0, by using default value 0, यानी ये क्या करता है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 लेता है, कुछ दे नहीं दे तो भी ये डिफॉल्ट लेता है। इसको जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो इसको एरे टाइप से डिफाइन करना पड़ता है, तभी ये मोर देन 1 डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। और इसका साइज हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है 30, 40, 50, तब जाकर के डेटा को स्टोर करता है। अदरवाइज ये स्टोर बाय डिफॉल्ट
एक 0 कर लेता है। अगर सिंपली इसको लिख दिया जाए बाइट जेड, तो ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही वैल्यू लेगा, 0 0 1 के अलावा ये कुछ और स्टोर भी नहीं करता है। ये बाइनरी डेटा को स्टोर करने में हम लोग इस डेटा टाइप का यूज करते हैं, या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रीम में चेंज करने के लिए इस टाइप का यूज करते हैं। तो लिख लीजिए इसका एग्जांपल। Next one is Boolean. This data type also take 1 byte size of memory, also take 1 byte size of memory and store either true or false, either true or false value, either true or false value. As for example, Boolean, if we are taking Z, then Z can store either false or Z can store true. तो ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे जावा के, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो वेरियस टाइप्स के डेटा रेंज वाले वैल्यू का डेटा को लेते हैं और ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। राइट, अब बात आती है कि जब इससे आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो सेकेंड पार्ट है इसका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव का जो यूज किया गया वो जस्ट लाइक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए यूज किया गया, यानी कि उसमें हम लोग अपने पर्पस के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं और अपने ओन टाइप्स के डेटा को वहां स्टोर करके रख सकते हैं। यानी नॉन प्रिमिटिव एक तरह से यूजर डिफाइंड क्लासिफाइड डेटा टाइप्स है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब क्या है कि ये डेटा टाइप्स के बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चंस देते हैं, सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सॉल्व करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू टेक प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट and time in year, then display simple interest. Next one, write a program to take two real number and add, subtract and multiply them. Question, write a program to take a Boolean type value, type variable and display true. बस इसमें असाइन करके लेना है, नो यूजर इनपुट, all the value you should take in with assign the value inside the variable. क्लियर है? तो जो लास्ट डे का कंफ्यूजन था वो भी मैंने बता दिया।
कि आपको कैसे असाइन करके वैल्यू लेना है। तो जब भी असाइनमेंट करके वैल्यू लेना होगा तो दिस इज द वे जिसके हेल्प से हम लोग असाइनमेंट करेंगे वैल्यू का, और फिर कंप्यूटेशन करेंगे, और फिर रिजल्ट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर इसके आगे से। सर जब भी हम लोग सर इनपुट ले रहे होंगे सर, तो कॉन्कैटिनेशन करने के लिए प्लस का यूज करेंगे ना सर? हाँ, यहाँ पर ये हमेशा यूज करेंगे, चाहे यूजर इनपुट लें या असाइनमेंट करें, दोनों केस में ये ऑलवेज सेम यूज होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट। ओके सर। ओके। ओके सर।